أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس التاسع نوع سبق الدرس التاسع نوع سبق الأمثال العربية الأمثال العربية آپ جانتے ہیں یہ موصوف صفت کی مثال ہے عربی مثالیں ضرب الامثال جو ہوتی ہیں عرب میں جیسے ہم انگلش میں پرووربس وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا اپنی ہر زبان میں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے بڑا خوبصورت اور یہ دانائی سے بھری ہوئی باتیں ہوتی ہیں امپورٹنٹ لیسن ہے ایک کوشچن اس میں یا دو کوشچن آ ہی جاتے ہیں ایگزام میں تو یہ مثالیں ہیں من جد وجد من جد وجد من جس نے جد کوشش کی جد کیا کہتے ہیں کوشش کرنا وجد اس نے پایا یہ وجدہ نہیں ہے جیم پر جیم مشدد نہیں ہے دوسرے میں پہلے میں دال مشدد ہے دوسرے میں سمپل ہے من جد جس نے کوشش کی وجدہ اس نے پایا آپ جانتے ہیں انگلش میں بھی ہے وائر دیر از اے ول دیر از اے وے ہے نا من جد جس نے کوشش کی وجدہ اس نے پایا جو کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی کوشش کو بارآور کرتا ہے اور وہ چیز وہ پاتا ہی ہے اگر اس صورت میں نہ پائے تو کسی اور صورت میں پاتا ہی رہتا ہے من جد وجد اس کے بعد کیا ہے دوسرا من صبر ظفر من صبر جس نے صبر کیا ظفر اس نے کامیابی پائی من صبر من جس نے صبر کیا ظفر اس نے کامیابی پائی یا جو صبر کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے چونکہ جب ماضی میں ہو اس کا مطلب ہے عربی میں جب ماضی کوئی بات کہی یہ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ضرور وہ ایسا ہوتا ہے من صبر جس نے صبر کیا ظفر اس نے پا لیا یعنی جس نے صبر کیا ظفر وہ کامیاب ہوا کیسے کامیاب ہوا کبھی کبھی انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں مجھے وہ نہیں ملا جس کے لیے میں نے صبر کیا تھا لیکن جب ہم دورس نتائج دیکھتے ہیں جب کچھ عرصہ کے بعد دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہی صبر ہی ٹھیک تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے صبر کی تاکید کی ہے سورہ عصر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر ہر انسان بست مجموعی خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے وتواصوا بالحق اور جس نے حق کی وصیت کی حق کی تلقین کی وتواصوا بالصبر جس نے تواصو بالصبر کیا تو صبر جو ہے صبر اہم بات ہے کیونکہ جب بھی آپ کوئی اہم کام کریں گے اس میں مشکلات آ جاتی ہیں اس میں تضحیق آ جاتی ہے اس میں استہزاء آتا ہے اس میں مشکلات آ جاتی ہیں تو اس پر صبر کرنا جو ہے یہ بہت بڑا دل گوردے والے لوگوں کا کام ہے من ضحیقہ جس نے ہنسا ضحیقہ اس پر ہنسا گیا یہ تو معروف ہے ماضی معروف ضحیقہ اور یہ ماضی مجہول ہے ضحیقہ مجہول یعنی اس میں تو فائل معلوم ہے من ضحیقہ جس نے ہنسا ضحیقہ اس پر ہنسا گیا یعنی جو لوگوں پر ہنستا ہے کچھ عرصہ کے بعد اس پر خود ہی ہنسا جاتا ہے یعنی وہ خود ہنسنے کی چیز بن جاتی ہے تضحیق کی چیز بن جاتی ہے اس لیے دوسروں پر ہنسنے کے بجائے اپنے آپ پر اپنے گریباں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ میں کتنا پانی میں ہوں دوسرے کو کیا ہنسے انسان تو جو ہے اور یہ بھی ہے فارچون ٹرنز لائک اے ویل جو آج امیر کال غریب جو آج صحت مند کال بیمار جو آج اونچے عہدے پر کل نہیں رہے گا یہ جو ہے سنت اللہ ہے تو من ضحیقہ جس نے اور ضحیقہ جو ہے جو دوسرے پر ہنسے گا یہ چونکہ گھمنڈ کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا ہے من ضحیقہ جس نے ہنسا جس نے کسی پر ہنسا ضحیقہ جس نے ہنسا ضحیقہ اس پر ہنسا گیا کل جدید لذیذ کل من ہر جدید نئی چیز لذیذ میٹھی ہوتی ہے کل جدید لذیذ ہر نئی چیز میٹھی ہے تو اب جب ہر نئی چیز
میٹھی ہے उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कि नई चीज़ जो है इंसान की आंखों को भाता है, अच्छा लगता है, हालांकि वो इतनी ज़्यादा कीमती ना भी हो। मसलन हमारे पास कोई कीमती चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन जब हम नई चीज़ लाते हैं तो हमें हमारा दिल जो है उसकी तरफ माइल होता है, उस नई चीज़ की तरफ। तो इसको जो है तो हम हालांकि वो इतनी कीमती नहीं होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन चूंकि नई है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कुल्लु जदीदुन लजीदुन। तो ये भी अच्छी, जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, महफिल में बैठे आपस में बात करें तो आप कोई नई चीज़ आई वो अच्छी नहीं है, फिर भी सब कहते, तो हम कहें हाँ कुल्लु जदीदुन लजीदुन, हाँ हर नई चीज़ है वो तो मीठी होती है। इसका मतलब है कि अगर चीज़ अच्छी भी ना हो फिर भी ये लोगों को अच्छी लगती है। नहीं, अगर पुरानी कितनी भी अच्छी हो, हालांकि अब कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, पुराना जो है वही गोल्ड, वो जो सोना होता है, मतलब है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें वो जो होती हैं जो नई चीज़ में नहीं होती है ना। अब इसके बाद है खैरुल उमूर औसतुहा। खैरुल उमूर औसतुहा, खैर माने बेहतर, खैरुल उमूर, उमूर में से बेहतर। अमर, अमर की जमा है उमूर, अमर की जमा है उमूर। मामलात, अमर कहते हैं मामला, अमर कहते हैं अमर, अमर कहते हैं कोई सिचुएशन, अमर कहते हैं काम। खैरुल उमूरी, बेहतरीन काम, बेहतरीन मामला, बेहतरीन अमर। औसतुहा, औसत माने बीच वाला, वस्त, वाव सीन तोय, वस्त माने बीच वाला, औसत माने उसका बीच वाला, औसतुहा उसका बीच वाला है। तो जो सबसे बीच वाला हो तो औसतुहा, हा जो है उसकी जमीन उमूर की तरफ पलटती है। उमूर चूंकि जमा गैर अकल, इसलिए वाहिद मोनस का से गया खैरुल उमूर औसतुहा। खा आ गया, हु नहीं आया, खा क्यों आया, क्योंकि उमूर जो है गैर अकल की जमा है, इसलिए वाहिद मोनस का सेगा आ गया। खैरुल उमूर औसतुहा, उमूर में से बेहतरीन, इन मामलात में से बेहतरीन, या आप जो फैसला करेंगे उसमें से बेहतरीन फैसला क्या है, औसत बीच वाला। न इंसान इफरात में जाना चाहिए न तफरीत में जाना चाहिए। इफरात या तफरीत यानी ऊंच या ज़्यादा नीच, मसलन किसी चीज़ में भी ज़्यादा शिद्दत नहीं अख्तियार, न राइट ज़्यादा न लेफ्ट जाया है, सेंट्रिस्ट बनो। अब इसका मतलब नहीं है वो, मैं मेरा एक कहना का मतलब नहीं है कि आप ये आइडियोलॉजिकल राइट आइडियोलॉजिकल लेफ्ट, हालांकि वहाँ भी किसी हद तक ये सही है। असल में ये है कि बी सेंट्रिस्ट, ये जो है न ज़्यादा उस शिदत में चले जाओ न ज़्यादा इस शिदत में चले जाओ, है ना। क्योंकि देखा गया है कि बीच वाला मामला जो है वो बेहतर होता है। अगरचे ये कुरान नहीं है, एक हदीस ने, एक अमसाल अरबिया है, मशहूर मिसालें हैं। तो और ये मिसालें जो हैं ये काफ़ी तजुर्बा की बात लोगों ने कही होती है, तो इनमें हज़ारों साल का तजुर्बा होता है। हम तो कुछ ही साल जीते हैं फिर कहते हैं हमने वो किया ये किया, तो चूँकि इसमें हज़ारों साल का तजुर्बा बैद में लोगों ने कहा होता है। आप देख लीजिए, तो ये जो है ये अरबी अरबी का मशहूर मकौला है, खैर उमूर औसतहा, मिडल वे इज़ द बेस्ट वे, है मिड वे इज़ द बेस्ट वे। अल कर्ज़ मिक़राज़ुल मुहब्बती, हाँ ये भी याद रखना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। अल कर्ज़, कर्ज़ कर्ज़ कहते हैं लोन देना किसी को। मिकराज, मिकराज कहते हैं कैंची को, मिकराज कहते हैं सीजर को, मिकराज कहते हैं जो काटने वाली चीज़ है ना, जो कैंची है मिकराज। हम कश्मीर में कहते हैं मिकराज, जो ये दर्जी होते हैं वो कहते हैं मिकराज। मिकराज का मतलब है यही है मिकराज, मिकराज मीनस कैंची, मिकराज मीनस सीजर, मिकराज मीनस मिकराज है। अच्छा, अल मोहब्बती, मोहब्बत की, मिकराजुल मोहब्बती, ये मुजाफ मुजाफिर है, मोहब्बत की कैंची। पहले इसका जो तर्जुमा है, मोहब्बत की कैंची कौन है, कर्ज है। मोहब्बत की कैंची कर्ज है, कर्ज जब आप उठाएंगे, कर्ज जब किसी का लेंगे या किसी को देंगे, अगर आप वो टाइम पर उसको नहीं अदा करते हो तो फिर भी जो है उसको नाराज़गी हो जाती है, और आपके बीच में जो दोस्ती थी वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए दोस्ताना पन में जो है ये कर्ज न लिया जाए, ना न कर्ज दिया जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जब कोई मुसीबत में है, इंतहाई मुश्किलात में, तो नहीं देनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि कर्ज जो है बाद में अगर ये मसलन इसको जो है वो टाइम उस टाइम पर अदा ना कर सका तो जो मोहब्बत भी होती है उसमें भी दरार पैदा हो जाती है। देखो जिसने मुझे मेरे साथ क्या किया। तो कर्ज लेना और कर्ज देना है, इसके बहुत सारा एहतराज करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तो सिवाय इंतहाई मुश्किल हो, अदरवाइज जो है कोशिश करनी चाहिए कि कर्ज न ले लिया जाए, है ना। तो अलकर्ज मिक़राजुल मोहब्बत, ये मोहब्बत की कंची है ना। तो
लेकिन अगर कोई मांगे, जैसे कि हदीस पाक में भी है, तो आप क्या करो, आप उसको कर्ज हसन दिया करो। कर्ज हसन का मतलब है कि मिले तो ठीक, ना मिले तो ना, लेकिन उसको ये नहीं कहना है कि आपको कर्ज हसन इस तरह है। तो जो कर्ज को कर्ज लेता है उस पर ये फर्ज आयद होता है कि वो जल्द से जल्द, हत्ता कि मैंने इसके मतलब एक ज़बरदस्त वईद सुनी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ने मतलब पढ़ी है कि जब कोई किसी के पास मतलब गुस्सा तो हो, फिर भी वो आप कार को टाल मटोल करता रहे, ये बहुत बड़ी खैर होती है। तो इसके मुताबिक रसूल ने बहुत ज़्यादा डराया है। नंबर 6 है, नंबर 7 है। ये आप देख लीजिए, गिनती जो है 7 ऐसे लिखी जाती है, 5 है, ये 4 इधर देखो, ये 1 2 3 4 5, ये अरबी की है, ये देखना चाहिए। 7 सुदूरुल अहरारी, सुदूरुल अहरारी कुबूरुल असरारी, सुदूरुल अहरारी, जिंदा। सुदूर मैंने सदर से निकला है, सदर मैंने सीना, सदर मैंने सुदूर मैंने सीने। अब यहाँ सीना का मतलब सीना नहीं, यहाँ मतलब है दिल। सुदूरुल अहरारी, सुदूरुल अहरारी, अहरार कहते हैं, अहरार कहते हैं आज़ाद, हुर को हुर कहते हैं आज़ाद, हुर्रियत आज़ादी। सुदूरुल अहरारी, आज़ाद लोगों के दिल, आज़ाद लोगों के सीने। आज़ाद लोगों के सीने का मतलब आज़ाद लोगों के दिल, है ना। यहाँ आमतौर हम कहें मैं तुमसे छत, छत मीनस दिल है, उसका उसका चौड़ा सीना है, उसका मतलब कि उसका चौड़ा, उसका बड़ा दिल है ना। सुदूरुल अहरारी, जिंदा लोगों के, आज़ाद लोगों के दिल। कुबूरुल असरारी, कुबूर कहते हैं कबर की जमा, कबर, कबर की जमा कुबूर, कुबूर कहते हैं कबरें। अल असरार, सिर की जमा। तो सिरों की कबरें, आज़ाद लोगों के दिल, सिरों की कब्रें होती हैं। मतलब क्या है, मतलब उनके पास अपना दोस्त, उनके पास अपना पराया, सब उसके पास अपनी बात कहते हैं। वो ये कौन, ये अहरार लोग, अहरार लोगों के पास, लेकिन वो उन बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं, अपने सीने में दफन करके रखते हैं। यानी अगर किसी ने आपके सामने कोई किसी की बात किया, कोई सिर बात की बात की, आपको नहीं चाहिए कि वो दूसरों तक आप पहुंचाए। हमारे दिल कुशादा होने चाहिए। कशिप बचवन है मेरे ऐसा ये, तुम लोग ऐसा ये सियारा से तुम लोग बात शपन ये क्या शपीन है। असल में वो हजम होना, यह हजम अलग बात है, लेकिन ये मिसाल के तौर पर कहा गया है कि हमें चाहिए कि दूसरों के सिरों की पासदारी करें। एक और जगह भी कहा गया है, हुजूर अल मजालिस बिल अमान, मजालिस जो है वो अमानत से है। यानी जब कोई मजलिस है, उसमें कोई बात हुई, आपको उसकी बात दूसरों को नहीं कहनी चाहिए। तो सुदूर और अहरारी, जिंदा लोगों के दिल, कबूर और असरारी, सिरों की कब्रें होती हैं। यानी वो उसको जैसे कब्र में दफन किया जाए, इसी तरह अपने दिलों में लोगों के सिरों को दफन करते हैं। वो लोगों को कहते नहीं फिरते हैं, वो लोगों की गिबतें नहीं करते फिरते हैं, लोगों के राज जो है इफ्शा नहीं करते रहते हैं। राज को जो है, राज को राज ही रहने देने चाहिए। आदातुस सादात सादातुल आदात, आहा, साद आदातुस सादात, सरदार लोगों की आदतें या बड़े लोगों की आदतें हैं, इलीट लोगों की आदतें। सादातुल आदाती, वो आदतों की सरदार होती हैं, आदतों की सरदार होती हैं। सैयद में सरदार, बड़ा, इलीट। अच्छा, आदात, आदत की जमा है। देखो आदत, आदात, आदत है आदत की जमा, आदात बहुत सारी आदतें, आदात सादाती, बड़े लोगों की, बड़े लोगों की आदतें, ग्रेट लोगों की आदतें, सैयद लोगों की आदतें क्या हैं, सादातुल आदाती, वो आदतों की सैयद हैं, वो आदत आदात की सरदार हैं। आदात सादात, सादातुल आदात, यानी जो आदात, बड़े लोगों की आदत, आदतें जो होती हैं वो सचमुच बड़ी ही आदतें होती हैं, है ना। मसलन उनमें ये ही जो सुदूर अहरार कबूर असल, ये उनकी एक आदत होती है, वो किसी का सिर जो है दूसरों को नहीं कहती है। वो बड़े से बड़ी बात भी जो है सह लेते हैं, अंदर ही दिल में दफन कर लेते हैं। या दो, अगर कोई उनके साथ ओछापन इख्तियार करे, कमीनागी इख्तियार करे, वो वापस कमीनागी इख्तियार नहीं करते हैं, है ना। या इसी तरह से कुछ आदत, बहुत सारी जो भी आदत है, हमने क्या समझा कि बड़े लोगों की, सरदारों की आदत, सरदारों की आदतें, सरदारों की आदतें आदतों की सरदार होती हैं। यानी अच्छे, उनके पास अच्छे आदत होते हैं, बड़े 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 आदत होते हैं।
खूबसूरत आदात होते हैं। अल इंसान यहसुदु कमा यजरऊ, 10 तक ही पढ़ लेंगे। अल इंसान, इंसान, यहसुदु, हसद व यहसुदु याद रखना चाहिए, ये हाय सीन दाल नहीं है। एक होता है हाय सीन हसद, एक होता है हा सीन दाल हसद, तो एक होता है हाय हा स्वाद दाल। यहाँ आप देखेंगे एक होता है शबाश हा हा सीन दाल हसद, ये होता है बगस अनाद हसद किसी का है ना जो आप एक हा स्वाद दाल हसद है। ये हसद आपको जब जाते हैं प्रेजुडिस है, बयस है, हसद है किसी का, तो हसद जो हाय स्वाद दाल जो हसद हसद कहते हैं फसल काटना, जिसको हम कहते हैं हार्वेस्ट, है ना, हार्वेस्टिंग जो है उसको कहते हैं हसद, हसद। तो ये क्या है, ये है अल इंसान, इंसान, यहसुदु, हसद यहसुदु, नसर यंसुरु से है, हसद यहसुदु, वो क्या करता है, वो काटता है, यानी वो हार्वेस्ट करता है, वो फसल काटता है। कमा, कमा माने जैसे, यजरउ, जैसे वो ज़िराअत करता है, जैसे वो बोता है। ज़रा यजरउ कहते हैं क्या बोना, सीड बोना, यानी ब्योल ववन। युथ इंसान ववन छु कमा तुथु छु लोनन, कश्मीरी में कहते हैं युथ, युथ वोम तुथ लोनुम, युथ वोम तुथ लूनुम, यानी अल इंसान यहसुदु कमा यजरउ, इंसान वही कुछ काटता है जो कुछ वो बोता है। और इंग्लिश में भी है, मैंने यहाँ भी इसमें लिखा एज यू सो, जैसे आप बोएंगे, सो शैल यू रीप, ऐसा ही आप काटेंगे। मतलब फसल, आप फसल कटाइए वही करेगी। अगर इंसान अच्छा बोता है, अगर इंसान अच्छी जिम्मेदारी करता है तो अच्छा ही फसल निकलेगा। अगर इंसान अच्छी जिम्मेदारी नहीं करता है, अगर वो भंग बोता है तो भंग ही निकल आएगा। अगर वो शबाश, अगर वो खुराक यानी अच्छी मीठी चीज़ें बोता है तो वही निकलेगा वहाँ से। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में अच्छे काम करो तो आखिरत में आपको वहाँ ही उसका ही अच्छा ही फसल मिलेगा, फल मिलेगा आखिरत में ही, यहाँ भी दुनिया में भी। आप देखेंगे छोटेपन में अगर हम कोई काम करते हैं, बचपन में अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका जो है उसका खमियाजा इस दुनिया में ही कभी कभी भुगतना पड़ता है, और कभी अगर न भुगतना पड़े तो आखिरत में वो भुगतना पड़ेगा। अल इंसान यहसुदु कमा यजरऊ। अब लास्ट वाली है 10वीं, यहाँ फिर हम इधर पढ़ेंगे। अल इंसानु, अल इंसानु अब्दुल इहसानी, अल इंसानु इंसान, अब्द, अब्द, अब्द माने बंदा, अब्द माने बंदा, किसका, एहसानी, एहसान का बंदा। अल इंसानु अब्दुल एहसानी, इंसान जो है वो किसका बंदा है, एहसान का बंदा है। इंसान एहसान का बंदा है, यानी अगर इंसान को कोई एहसान करता है तो वो उसका ओब्लाइज्ड रहता है, उसको जो है फेथफुल रहता है, उसको जो है उसकी तरफ उसके दिल का मेला रहता है। यानी जुल्म से, जबर से नहीं, बल्कि इंसान अच्छाई से, एहसान से किसी का अपना बन जाता है। ये भी रखना चाहिए एहसान किसका नाम है। एहसान जो है इसकी तो बहुत सारी डिफिनेशन है, यहाँ तो मैं उतना नहीं कह जा सकता हूँ, लेकिन इतना याद रख लीजिए कि एहसान कहते हैं कि जिसको जो हक ना हो उसको वो देना। अगर किसी को कोई हक है उसको देता है तो उसका हक है, लेकिन अगर उसको हक नहीं है फिर भी वो देता है उसका अपनी तरफ से, पानी तरफ कह चीज़ का एहसान रुत कर एहसान। अगर उसका हक भी नहीं है या वो उसके साथ जुल्म करता है, ये वापस उसको एहसान करता है, उसको अल इंसान और अब्दुल एहसान, इंसान जो है एहसान का बंदा है। ये 11वीं पढ़ेंगे ताकि जो है बराबर जो है बराबर आ सकेगा। जो इसके 25 हैं तो हम निस्ब कर सकेंगे। उतलुबुल जार कबल दारी, उतलुब ढूंढो, अल जार हमसाए को, कबल दारी जो है मकान बनाए। दार कहते हैं मकान को, दार कहते हैं घर को। घर से पहले हमसाया को ढूंढो, अच्छा हमसाया को ढूंढो। तलक तजुर्बा है मुझे इसका, इस वक्त भी मैं ये सोच रहा था। उतलुबुल जार कबल दारी, शाबाश। घर से पहले हमसाए को ढूंढो। वर रफ़ीक़ कबल तरीक़, और तरीक़ कहते हैं रास्ते को, रास्ते से पहले रफ़ीक को ढूंढो। रफ़ीक कहते हैं साथी को। यानी सफ़र से पहले क्या करो, सफ़र शुरू करने से पहले ढूंढो कि अच्छा साथी मिले। अच्छा साथी और अच्छा हमसाया बहुत ही अहम बात है, क्योंकि अगर इंसान क्या भी करे लेकिन हमसाया को तो चेंज नहीं कर सकता है।
इसी तरीके से रफ़ीक जो है, साथी जो है, या आपके सफ़र को आसान बना सकता है या मुश्किल बना सकता है, जैसा वो साथी हो। अगर साथी अच्छा हो तो आपके इस सफ़र को आसान बनाएगा। अगर आपको, तो वो जो है वो फिर जीरन बनती है, वो ज़िंदगी भी और वो सफ़र भी। इसी तरीके से ज़िंदगी का सफ़र है, ज़िंदगी का रास्ता है, ये तय करने के लिए अपनी ज़िंदगी में आपको चुनना है। आप चूँकि बालिग हैं, तो ये भी जो है, ये आपको नसीहत है कि जज्बात में ना आकर बल्कि सोच समझ कर, घर वाले भी आपके दुश्मन नहीं होते हैं, उनसे पूछो, उनसे मशवरा करो जो है, और अपना रास्ता मुंतखब करो। अपना रास्ता मुंतखब करने से पहले अपने इसको रफ़ीक को चुनो कि कौन रफ़ीक सफ़र है आपका, वरना ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी अजीर बन जाएगी। इसी तरीके से उदुबुलजार कबलदार, अपना घर बनाने से पहले, अपना घर लेने से पहले हमसाया को देखो, हमसाया को ढूंढो, अच्छा हमसाया ढूंढो। अल आकल तकफ़ी इशारा, अल आकल जो है, आकल शख्स वो है, तकफ़ी उसको काफ़ी होता है, अल इशारत है, उसके लिए काफ़ी है इशारा। ए वर्ड टू द वाइज, है ना, क्या कहते हैं हम इंग्लिश में भी, ए वर्ड, ए वर्ड कहते हैं इशारा, वर्ड के लफ्ज़ है ना, एक लफ्ज़। ए वर्ड टू द वाइज, वाइज को पूरा क्या कहने की, ये तशरीह करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको छोटा भी, जैसे ये भी जो प्राउड, ये भी क्या कहते हैं हमें, शब्द फ्रेज, तो आपको तकफीर इशारा, हम बैठे होते हैं तो किसी को थोड़ा इशारा करते हैं तो काम का कर लेता है, तो हम कहते हैं अल आकिल तकफीर, जो अक्ल होता है उसके लिए इशारा ही काफ़ी होता है। जो बेवकूफ़ है उसको तो वजह करनी पड़ती है, फिर उल्टा एम्बेरसमेंट हो जाता है। अल आकिल तकफ़ी ही अल इशारा, अल आकिल तकफ़ी, तकफ़ी ही क्यों आ गया, क्योंकि अल इशारा जो है ये मुअन्नस है, तो यहाँ यकफ़ी, यकफ़ी है, या यकफ़ी के बजाय तकफ़ी आ गया, वाहिद मुअन्नस कैसे आएगा, ही उसके उसको किसको, अक्ल को, अक्ल को ये तकफ़ी जो है इसके साथ, और ही जो है अक्ल के साथ, अक्ल के लिए इशारा ही काफ़ी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।